Very good morning to everyone. Yesterday in the last session, what we were discussing, okay, in the last session we were discussed deadlock avoidance. We have ended the discussion of deadlock avoidance method of handling the deadlock. After that, we have discussed the safe and unsafe state of the system. Let me share the PPT first. Basically, when we talk about the deadlock avoidance, what we are checking here, जब भी हम डेडलॉक अवॉइडेंस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं द सिस्टम व्हाट द सिस्टम विल डू system will before allocating any resource to any of the process system first of all check whether granting this resource is safe or not. Whenever the system is granting any resource to any of the process in the system, firstly it will check the safe or unsafe state of the system. After that, it will make the allocation. So this is the strategy, not deadlock avoidance. What is the strategy? Deadlock avoidance that we are carefully allocating the resources. Carefully allocation of resources to the process. This is what called deadlock avoidance to us. So whenever your operating system is granting any of the resource to any of the process in the system, first of all it will check if it will grant any of the resource, it is the system will goes into the safe state or not. So we have discussed the safe state and unsafe state. Safe state will ensure the deadlock will not occur, and if your system is into the safe state, we are having the safe sequence, right? We are also having the safe sequence of the processes, but unsafe state will not ensure that deadlock will occur or not. You cannot say that there is a safe sequence. कोई सीक्वेंस नहीं होता है. मैंने आपको कल एक एग्जांपल भी कराया है. कुछ रिसोर्सेज थे हमारे पास और कुछ फ्री रिसोर्सेज थे हमारे पास. The safe system can guarantee that all the processes will finish its execution. अब सारे प्रोसेसेस अपनी एग्जीक्यूशन कब फिनिश करेंगे जब उन्हें जो रिक्वायरमेंट है जितने भी रिसोर्सेज की वो फुलफिल हो जाएगी एट दैट टाइम दे कैन complete its execution, right? The same way, but in when we talk about the unsafe state, there is no such guarantee that each of the process will complete its एग्जीक्यूशन और नॉट. तो बेसिकली अगर हम सेफ स्टेट की बात करें इसमें तो हम इंश्योर करते हैं कि डेडलॉक नहीं होगा, बट अनसेफ स्टेट में हम ये नहीं बोलते हैं कि सिस्टम डेडलॉक में है. इट इज अ प्रोबेबिलिटी कि सिस्टम डेडलॉक में जा सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. वी कैन नॉट से दैट if there is an unsafe state in the system, it means there is a deadlock. Now the statement is totally wrong. We are just saying system is into the unsafe state. What it means the state is not safe right now because we cannot allocate the resources as per the requirement of the process, but it is not sure that there is a deadlock in the system. Fine. So we have discussed these two terms, which is going to help us in the banker's algorithm. So we are using the one of the most important topic of your competitive as also in your examination point of view, university examination, banker's algorithm. As the name says, bankers. So it worked on the concept of bank. ठीक है. ये बैंकर्स का नाम, ये इसका नाम कहाँ से आया है क्योंकि ये बैंक, जैसे बैंक के मैनेजर्स हैं, बैंक प्रोफेशन से जो भी लोग बिलोंग करते हैं, लाइकवाइज दे आर, जब किसी को लोन देते हैं, ठीक है, किसी को पैसा देते हैं तो उसकी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं पहले. अकॉर्डिंगली दे विल एलोकेट द थिंग्स. लाइकवाइज द बैंकर्स एल्गोरिथम कम फ्रॉम देयर, राइट? So the name come from there. It is also written, it is modeled on the way a small town banker might deal with the group of customers
to whom he has grant lines of credit. What the algorithm does it check to see if granting the request leads to unsafe state. मतलब जैसे कि बैंक वाला क्या करेगा, आप किसी भी बैंक में जाओगे लोन लेने के लिए, कुछ क्रेडिट आपको चाहिए, कुछ लोन आपको चाहिए, यू विल गो टू सम ऑफ द बैंक एंड आस्क फॉर द लोन। क्या वो आपको ऐसे लोन दे देता है? क्या प्रोसीजर होता है लोन देने का? यू हैव टू, आपको एक इंश्योरिटी इंश्योरेंस देना पड़ता है कि यस दिस इज माय प्रोफाइल, दिस इज हाउ मच प्रॉपर्टी आई एम हैविंग, दिस इज हाउ मच गोल्ड आई एम हैविंग, जिसके भी बेसिस पे आप लोन लेना चाहते हो, राइट? तो दे विल चेक कि आपको लोन देना सेफ है या नहीं। सेफ मतलब कि कल को आप उसके पैसे लेकर भाग गए तो हो सकता है ना कि आप पैसे वापस ही नहीं दो, और आपकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप वो लोन रिटर्न कर पाओ, क्योंकि आपके बैक एंड पर वो किस बेसिस को आपको देखकर, आपका बैकग्राउंड चेक करके आपको लोन देते हैं, राइट? ये देखते हैं ना कि कल को अगर कोई बंदा मुझे ये पैसे वापस दे पाएगा या नहीं, राइट? So what this algorithm will does the same thing like the bankers are doing. So they will check granting the request leads to the unsafe state or not. मतलब ये request grant करना कहीं unsafe तो नहीं है, सबसे पहले check करते हैं लोग, right? If it does, the request is denied. अगर unsafe है तो request deny हो जाएगी. The same thing happens in our system as well. If granting the request led to the safe state, then it will be carried out forward. अगर ग्रांट करना करेक्ट होगा, सेफ होगा, तभी मैं उसको ग्रांट करूंगी कोई रिसोर्स, अदरवाइज नहीं करूंगी, राइट? ये काम कैसे करता है? बेसिकली हम बैंकर्स एल्गोरिथम को दो तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्टली इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द सिंगल रिसोर्स, देन वी विल आल्सो डिस्कस द सेम एल्गोरिथम फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज, राइट? पहले सिंगल रिसोर्स की बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे, जैसे कि है टोटल रिसोर्सेज, जैसे कि टोटल ही लिखा होगा आपको क्वेश्चन पेपर में, ठीक है? फिर आपको दिख रहा होगा एक वर्ड अवेलेबल, फिर लिखा होगा नीड, राइट, या रिक्वायरमेंट। ओके, so total resources means the total number of resources a system is having. Like for example, एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं। मेरे पास टोटल 500 रुपए हैं, so this is the total amount I'm having right now 500 rupees. This is the total amount, right? This is the total amount I am having. तो अगर मैंने इसमें से कुछ मनी किसी को दे दिए, तो मान लेते हैं कि मैंने 200 रुपए किसी ए पर्सन को दे दिए, तो मेरे पास अवेलेबल कितने हैं? हाउ मच अवेलेबल आई एम हैविंग आफ्टर गिविंग द 200 rupees to a person? How much available money I am having right now? The total is 500. 300 is remaining. So 300 is the available amount. Fine. So now this is the need. अब एक चीज होती है आपकी नीड या रिक्वायरमेंट। अब किसी पर्सन की, किसी रिसोर्स की नीड कितनी है? अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखूं नीड फॉर, दो मेरे पास पर्सन है बी और डी, ठीक है? बी की नीड है 400 रुपए और डी की नीड है 200 रुपए। तो दोनों की नीड है कुछ ना कुछ, इसको 400 रुपए चाहिए, इसको 200 रुपए चाहिए। तो मेरे पास अवेलेबल कितने हैं? भले ही मेरे पास टोटल 500 है, लेकिन 200 मैं उसमें से ऑलरेडी किसी को दे चुकी हूँ। जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन मेरे पास करेंटली कितने अवेलेबल है? करंट अवेलेबल अमाउंट that is 300. So what is the need of B? 400. Can I fulfill the need of B person? I cannot. जब तक मेरी पूरी नीड कंप्लीट नहीं होती है, तब तक मैं कोई भी पैसा या कोई भी रिसोर्स किसी भी पर्सन या प्रोसेस को नहीं दूंगी। Carefully listen here. On this basis you can perform numericals. जब तक मेरी पूरी बेसिक नीड कंप्लीट नहीं होती है, तब तक मैं अवेलेबल अमाउंट भी उसको नहीं दूंगी। तो इससे बेटर क्या है, डी के पास जो, मान लो मेरा जो डी पर्सन है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी नीड कितनी है? 200 रुपीज। तो मेरे पास अवेलेबल कितने हैं? 300। तो मैं उसे 200 दे सकती हूँ। Is it possible? So what I will do, I will provide 200 rupees to D process. Now the available amount is, currently available amount is 100 rupees, right? And मैंने इसको allocate कर दिए 200, इसको जो चाहिए थे, तो ये अब अपना काम कर सकता है। मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी है?
₹200 की है, तो मैं बी को तो अभी भी नहीं दे सकती हूँ, राइट? So this is how these terms will going to utilize in this numericals. Let us see. So first of all, let us discuss this numerical on single resource. I'm saying on single resource. अभी हम सिर्फ एक ही रिसोर्स की बात कर रहे हैं एक टाइम पे. अभी मैं मल्टीपल रिसोर्स की बात भी करूंगी, ठीक है? सिंगल रिसोर्स पे कैसे बेंकर्स एल्गोरिथम काम करता है, सेम ही काम है जो हमने कल देखा था न्यूमेरिकल में. थ्री रिसोर्सेज एलोकेशन स्टेट्स. ओके, देखो मेरे पास ऑलरेडी कितने हैज मीन्स कि इसको रिक्वायरमेंट कितनी है. हैज एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, और उसको मैंने दे कितना रखा है. मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एलोकेटेड, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट. Has means how many resources are allocated to A, how many resources are allocated to B, how many resources are allocated to C, and how many resources are allocated to D. तो किसी भी प्रोसेस को ऐसा भी हो सकता है, लिसन केयरफुली, आपको क्वेश्चन पेपर में सिर्फ फ्री नंबर ऑफ रिसोर्सेज गिवन हो और आपको टोटल फाइंड आउट करने हो. तो टोटल आपको नहीं गिवन है और फ्री आपको 10 गिवन है, तो आप टोटल कैसे फाइंड आउट करोगे? जितने प्रोसेस को एलोकेटेड है प्लस जितना फ्री है वो उसका टोटल अमाउंट हुआ. अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि मेरे पास अवेलेबल अमाउंट है 300, ठीक है, और मैंने किसी ए पर्सन को 200 रुपीज दे रखे हैं, तो मेरे पास टोटल कितने रुपए थे? यू कैन कैलकुलेट ना. What I'm saying here, so you have to calculate very carefully here कि क्या चीजें दी हुई हैं और उनसे कैलकुलेट कैसे कर पाओगे. अगर मैं ऐसा बोलूं तो currently I am having available money is 300 and I allocated 200 rupees to a person. So how much money I am having in total? 500. अब मुझे टोटल गिवन नहीं है बट फिर भी मैंने फाइंड आउट कर लिया. So I can find out total equals to free plus allocated. इतने रिसोर्सेज होंगे ना, राइट? तो अभी देखो किसी भी प्रोसेस को कोई भी रिसोर्स एलोकेटेड नहीं है, तो एक्चुअली जितने भी फ्री रिसोर्सेज है वहां पे टोटल रिसोर्सेज होंगे, ठीक है? जितने भी रिसोर्सेज फ्री है इट मींस इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन द सिस्टम. इज इट क्लियर? ओके, तो हाउ वी विल सी. आपको क्वेश्चन पेपर में यही पूछा जाएगा कि आपको गिवन टेबल से यही बताना है कि क्या आपका जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है, और अगर है तो उसका सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करो. सेफ स्टेट में है क्या, क्या मतलब है कि डेडलॉक नहीं है उसमें, ठीक है? तो आपको बेंकर्स एल्गोरिथम फाइंड लगाकर उसका सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करना है. कैसे? अब एलोकेटेड कितने रिसोर्सेज है? 0. हर किसी की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? दी हुई है. अगर मान लो यहाँ पर ए को एलोकेटेड होता है 1 और उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है 6, तो उसकी नीड हम यहाँ पे पहले फाइंड आउट करते हैं. दिस इज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोसेस. नाउ द करंट नीड, आप इसे करंट नीड भी लिख सकते हो. व्हाट इज द करंट नीड ऑफ ए प्रोसेस? इट बिकॉज इट इज 0 ऑलरेडी, 0 रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू प्रोसेस ए, तो उसकी करंट नीड कितनी हुई? व्हाट इज द करंट नीड ऑफ ए? 6. करंट नीड 5 minus 0 5, 4 minus 0 4, 7 minus 0 7. This is the current need of each process. ऑलरेडी किसी को कोई भी रिसोर्स एलोकेटेड ही नहीं है, तो उसकी करंट नीड क्या होगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज अ प्रोसेस रिक्वायर्ड एंड टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज वी हैव एलोकेटेड टू दैट प्रोसेस. मैक्सिमम माइनस एलोकेटेड प्रोसेस इज द करंट नीड. क्लियर है सबको? करंट नीड कैसे फाइंड आउट करनी है मुझको? ओके, तो इतना मैंने फाइंड आउट किया. अब मुझे देखना है कि मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी है. दिस इज द फ्री रिसोर्सेज और अवेलेबल रिसोर्सेज. ये तो सिर्फ एक ही रिसोर्स की बात हो रही है अभी, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन सिंगल रिसोर्स. सो फ्री रिसोर्सेज आई एम हैविंग इज 10. टू होम आई कैन गिव द रिसोर्स, मैं तो हर किसी को दे सकती हूँ. अब मैं मेरे पास क्या है यहाँ पर कि मैं किसकी नीड को फुलफिल करूँ, इसकी नीड को फुलफिल करूँ. मैं मेरे पास 10 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो अभी मैं किसी भी प्रोसेस को दे सकती हूँ. इट इज नॉट लाइक कि
मैं किसी एक प्रोसेस को फेवरिज्म करके दूंगी, तो मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं 10 रिसोर्सेज में मेरी ए की नीड भी फुलफिल हो रही है, बी की नीड भी फुलफिल हो रही है, सी की नीड भी फुलफिल हो रही है और डी की नीड भी फुलफिल हो रही है, राइट। लेकिन अब मैं इसमें से अगर मान लेते हैं मैं इसी सीक्वेंस की बात करूं, तो अगर मैंने यहाँ पर इसको 7 रिसोर्सेज दे दिए, अपने फ्री में से 7 इसको दे दिए, तो इसका काम खत्म हो जाएगा और मेरे पास फ्री कितने बचेंगे? 3। ठीक है, मेरे पास फ्री 3 बचेंगे। जैसे ये बी अपना काम खत्म करेगा, जितने रिसोर्सेज इसके पास अवेलेबल थे वो इसे रिलीज करके जाएगा। तो जब ये सारे रिलीज करके जाएगा तो ये 7 देकर जाएगा मुझको, तो मेरे पास फिर से रिसोर्सेज कितने हैं? 10। अब मैं उस टाइम पे क्या कर सकती हूँ? किसी भी पर्सन को दे सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास हाईएस्ट है उसको मैं दे रही हूँ। आइदर यू कैन फॉलो द सीक्वेंस, व्हाट यू नीड टू डू, यू विल फॉलो द कॉमन रूल कि आपको जिस भी सीक्वेंस में प्रोसेसेस गिवन होंगे टेबल में, उसी सीक्वेंस में आप एलोकेट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले डी की बजाय मैं ए को एलोकेट करती हूँ। फॉर योर लर्निंग, I will allocate to A process first, then after I will allocate to D process. Okay, I will allocate 6 resources to A. Now the free resources are 4. A will complete its execution and release the 6 resources after its execution. Now the resources are 10. Again, अब मेरे पास फिर से 10 है, तो मैं इसमें से इसको दे दूंगी। मैंने 5 दे दिए, तो फ्री कितने बचे मेरे पास? 5। अगर जब मैंने इसको 5 दिए तो उसका काम भी खत्म, फिर से रिलीज करके जाएगा, तो सारे के सारे रिसोर्सेज रिलीज करके जाएगा ना। दिस इज हाउ इट विल वर्क। So what it is saying, Banker's algorithm consider each request as it occurs and see if granting will lead to the safe state. If it does not, the request is granted. Otherwise, it will postpone until later. Banker's algorithm basically क्या देखता है कि किसी भी प्रोसेस ने अगर कोई रिक्वेस्ट की है रिसोर्सेज की, अगर मैं उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करती हूँ, तो क्या जो मेरा सिस्टम है वो सेफ स्टेट में रहता है। तो मतलब अगर मैं इसको 6, मैं अपने में से 10 में से अगर इसको 6 रिसोर्स देती हूँ, तो मुझे पता है ना कि अपना काम खत्म करके मुझे 6 के 6 वापस 6 के 7 वापस करेगा सारे, तभी मैं इसको दे रही हूँ। अगर मुझे पता हो कि मुझे वापस नहीं करेगा तो मैं इसे दूंगी नहीं ना। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 6, मैंने पूरी फुलफिल कर दी। अगर मान लो इसकी रिक्वायरमेंट है 6 और मैं इसे दे रही हूँ 5, अब इसको तो एक और चाहिए ना, तो ये वेट करेगा, तो मैं इसको क्यों दूंगी? राइट, तो मैं इसे दूंगी ही नहीं। दिस इज हाउ योर बैंकर्स एल्गोरिथम विल वर्क। फाइन, ओके, लेट अस फिगर आउट दिस एग्जांपल फॉर बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज। फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज, अब मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए हम देखते हैं कैसे काम करते हैं। दिस इज द resources assigned, resources still needed. Okay. So first of all, this is the assignment of resources given. We are having 5 processes A, B, C, D, and E. बाद में करते हैं, पहले आपको मैं ये दिखाती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे। चलिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोसेस कौन कौन से हैं? P0, P1, P2, P3 and P4, right? I am having 3 type of resources A, B and C. I'm having 5 processes in the system and I'm having 3 kind of resources in the system. अब A रिसोर्स के मेरे पास कितने इंस्टेंस गिवन है? 10। A रिसोर्स के कितने इंस्टेंस गिवन है? टोटल 10। B is having 5 instances and C is having 7 instances. B के कितने टोटल इंस्टेंस, मतलब B अगर मैं रिसोर्स की बात करूं तो मेरे पास टोटल B रिसोर्सेज कितने हैं? 7। सॉरी, B है मेरे पास 5। ठीक है, और C कितने हैं मेरे पास? 7। और A कितने हैं मेरे पास? 10। ठीक है, दिस इज द total number of resources I am having. Now I am giving the example of multiple resources in the system, right? अब मेरे पास A, B, C 3 तरह के रिसोर्स हैं सिस्टम में। A कुछ भी हो सकता है, B कुछ भी हो सकता है, C कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिसोर्स हो सकता है। अब हर किसी, अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सेफ सीक्वेंस ऑफ द सिस्टम विद करंट एलोकेशन।
So you can see in the given table, आपको ये नहीं दिया होगा, आपको सिर्फ इतना टेबल दिया होगा पेपर में भी, आपको 5 प्रोसेसेस में हर एक रिसोर्स को एलोकेशन दिया, मतलब P0 प्रोसेस को A टाइप के 0 रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं, P0 प्रोसेस को B टाइप का 1 रिसोर्स एलोकेटेड है, P0 प्रोसेस को C टाइप का 0 रिसोर्स एलोकेटेड है. Are you getting what it is written in this column? As similarly for P1 process, 2 of A type instances, the A type of resources are allocated to P1 process, और B और C type के कोई भी resources P1 को allocated नहीं है. Are you getting what it is written here? So this is the allocation given, right? अब हर एक प्रोसेस की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, हर एक रिसोर्स की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट दी हुई है कि P0 को टोटल कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पर देखो P0 को A 7 चाहिए, B रिसोर्सेज 5 चाहिए और C टाइप के रिसोर्सेज 3 चाहिए. Similarly for P1 process, P1 requires 3 resources of A type, 2 resources of B type and 2 resources of C type, right? So this is the maximum need of each process is given. So if you know that what I am saying here, मेरे पास total number of instances given है इस बार, ठीक है? So I can find out the current need of the process, but I can find out the current need of each process. देखो अब मेरे पास अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि मेरे पास A के 10 रिसोर्सेज हैं, मेरे पास B के 5 रिसोर्सेज हैं और मेरे पास C के 7 रिसोर्सेज हैं, तो व्हाट इज द करंट नीड, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी, 7, 5 और 3, ठीक है. करंट मेरे पास टोटल इतने थे और उसमें से मैंने इतने एलोकेट कर रखे, तो सबसे पहले मेरे पास अवेलेबल कितने हैं मुझे वो फाइंड आउट करने हैं. मेरे को नहीं गिवन है ना कि मेरे को टोटल गिवन है, उसमें से कुछ मैंने एलोकेशन की हुई है, तो मेरे पास फ्री कितने हैं, पहले मैं ये चेक करूँ कि मेरे पास बची कितना अमाउंट हुआ ताकि मैं अब देखूँ मैं किसको दे सकती हूँ, ठीक है. तो मेरे पास टोटल A के 10 है, B के 5 है, C के 7 है. लेट अस सी हाउ मेनी आई हैव एलोकेटेड टू द प्रोसेस. A के कितने एलोकेटेड किए आपने, 2, 3, 2, टोटल 7 यू हैव एलोकेटेड ऑफ A टाइप. किसी भी प्रोसेस को दी हूँ पर मैंने कितने टोटल दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं A टाइप के. B के कितने दे रखे हैं, 1 + 1 2. C के कितने दे रखे हैं मैंने, 2 + 1 + 2 that is 5. So this is the allocated resources to the process. This is the allocated resources. What I was saying, this was the allocated resources in the system, that is 7, 2 and 5. अब देखो मैंने क्या बताया था, total number of resources is equals to, तो free resources means available कितने हैं plus allocated कितने हैं. This is how the total number of resources you can find out. समझ में आ रही है आप लोगों को यहाँ पर क्या हो रहा है, how you can find out the total number of resources, अवेलेबिलिटी कितनी है और एलोकेटेड कितने हैं, मतलब 500 में से मेरे पास बचे कितने हुए हैं, अवेलेबल कितने हैं और मैंने एलोकेट कितने किए हैं. दिस इज व्हाट द टोटल अमाउंट. द सेम वे टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज इज इक्वल्स टू अवेलेबल नंबर ऑफ रिसोर्सेज प्लस एलोकेटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज. तो ऑलरेडी मेरे पास टोटल का काउंट गिवन है, एलोकेटेड का काउंट गिवन है, तो मैं अवेलेबल कितने वो फाइंड आउट कर सकती हूँ. यहाँ से I can find out the available number of resources in the system. Yes or no? I can find out the available number of, अब मेरे पास फ्री कितने होंगे, that is total minus allocated. तो टोटल कितने हैं, 10, 5 and 7. Allocated कितने हैं, 7, 2 और 5. माइनस करो कितने अवेलेबल हुए मेरे पास, 3, 2, 2. So this is the available number of resources I am having, 3, 3 and 2. This is what it is written
कि मेरे पास टोटल अवेलेबल कितने हैं रिसोर्सेज। अब मेरे पास ए टाइप के 3 ही रिसोर्सेज हैं, बी टाइप के 3 रिसोर्सेज हैं और सी टाइप के 2 रिसोर्सेज हैं। दिस इज द अवेलेबिलिटी राइट नाउ। करंटली कितने अवेलेबल हैं? क्लियर है सबको? इतना इतना क्लियर है सबको, ताकि आगे मूव ऑन करें फिर। हाउ आई फाइंड आउट द अवेलेबल नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन द सिस्टम? ये ओके। चलिए अब देखते हैं कि मेरा जो सिस्टम है, अभी तक तो मैंने अवेलेबल नंबर ऑफ रिसोर्सेज फाइंड आउट किया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? सेफ सीक्वेंस। चेक करना है कि जितना मेरे पास अवेलेबल है उतने में मैं सारे प्रोसेसेस को एलोकेट करके फिनिश कर सकती हूँ, या मेरा सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं है। ओके, लेट अस चेक नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, अब मेरे पास अवेलेबिलिटी मेरे को पता चल गई। ओके, so what we will do here, available resources are 3, 3 and 2. Now you will check the current need of each process. We got, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? करंट नीड ना। तो हर एक प्रोसेस की करंट नीड कितनी है, मुझे सबसे पहले वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं पहले एक प्रोसेस जीरो की करंट नीड फाइंड करती हूँ। उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 753। एलोकेटेड कितने? 010। तो रिक्वायरमेंट कितनी बची? 7। 5 minus 1 4, 3 minus 0 3. This is the current need of A process P0. ठीक है, P1 की करंट नीड कितनी होगी? 3 minus 2 1, 2 minus 0 2 and 2, राइट। P2 प्रोसेस की करंट नीड कितनी होगी? 9 minus 3 6, 0 minus 0 0, 2 minus 2 2। मतलब P3 P2 प्रोसेस को सिर्फ ए टाइप के रिसोर्सेज चाहिए और उसे दूसरे रिसोर्सेज नहीं चाहिए। चलिए, similarly for P3 it is 2 minus 2 0, 2 minus 1 1, 2 minus 1 1। Okay, for P4 process it is 4 3, 3 minus 2 1। So this is the current need of each process। अब मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी है और हर एक प्रोसेस को चाहिए कितने, मेरे पास दोनों आ गए हैं। मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी है और सभी प्रोसेसेस को कितनी रिक्वायरमेंट है, मेरे पास दोनों चीजें आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखूंगी करंट नीड में मेरे पास कितने अवेलेबल है। देखो, अगर मेरे पास 500 है रुपए है और किसी को 200 चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास 500 है और किसी को 600 चाहिए तो मैं नहीं दे सकती। द सेम थिंग विल हैपन हियर, द सेम कॉन्सेप्ट विल वर्क हियर। अब आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है? 3 3 एंड 2। आपके पास हर एक प्रोसेस की करंट नीड भी है। तो आप बताइए पहले कि मैं कौन कौन से प्रोसेसेस को सर्व कर सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू यू, मैं कौन कौन से प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेट कर सकती हूँ? यस, टू विच प्रोसेस आई कैन एलोकेट द रिसोर्सेज? यस गाइस, बताइए जल्दी। P1, okay, P2, oh sorry, P3, 011, which are less and need to add something to it. Okay, P3, P1, okay। तो देखो, अगर मैं ऐसा बोलूँ, मेरे पास रिक्वायरमेंट कितनी है? 332। तो अगर मैं P0 की बात करूँ तो P0 की रिक्वायरमेंट है 743। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मैम हम इससे सी जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज है वो इसे दे सकते हैं। इसे तो हम कोई भी रिसोर्स नहीं दे सकते कि इसके पास सारे के सारे जो रिसोर्सेज है वो मेरे पास है ही नहीं। इसको ए टाइप के 7 चाहिए, मेरे पास 3 है। इसको बी टाइप के 4 चाहिए, मेरे पास 3 है। इसको सी टाइप के 3 चाहिए, मेरे पास 2 है। चलो, तो मैं P0 को तो नहीं दे सकती, इसकी तो बात ही खत्म। दूसरा प्रोसेस है मेरे पास P1। तो क्या मैं P1 प्रोसेस को दे सकती हूँ? इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 1। मेरे पास कितने हैं? 3। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 2। मेरे पास कितने हैं? 3। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 2। मेरे पास कितने हैं? 2। तो मैं इसको दे सकती हूँ। ठीक है,
तीसरा ऑप्शन देखो, हम ये नहीं कि सिर्फ इसको देखो और इसको दे दिए, हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे पहले। दूसरा ऑप्शन क्या है P2 का, मैं इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 6, मेरे पास एक 3 ही है, मैं इसको नहीं दूंगी, चलो इसकी भी बात खत्म। तीसरा चौथा ऑप्शन है मेरे पास P3 प्रोसेस, इसकी रिक्वायरमेंट 0, मेरे इसको चाहिए ही नहीं, फाइन। इसकी रिक्वायरमेंट 1 एंड 1, मेरे पास 3 और 2 है, तो मैं इसको भी दे सकती हूँ। द नेक्स्ट थिंग आई एम हैविंग हियर इज 4 3 1। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, इसके पास भले इसकी रिक्वायरमेंट ए की 4 है, बी की 3 है और सी की 1 है, तो मेरे पास बी और सी इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अवेलेबल है, तो मैं P4 प्रोसेस को क्यों नहीं दे सकती? Why I cannot allocate to the P4 process? क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है ना बी और सी रिसोर्सेज को। ए मैं बाद में दे दूंगी, ऐसा नहीं चलेगा। See guys, whenever we are allocating the resources to any of the process in the system, जब तक उसकी सारी रिसोर्सेज की नीड फुल नहीं होगी, यस, जब तक उसकी सारी रिसोर्सेज की नीड मैं कंप्लीट नहीं कर सकती, मैं उसको दूसरे टाइप के रिसोर्सेज भी एलोकेट नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने इसको बी और सी टाइप के रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए और इसने इसको, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी है 3 और 1 और मेरे पास अवेलेबल भी है, लेकिन जब तक इसको ए नहीं मिलेगा P4 आपको बाकी के रिसोर्सेज भी रिलीज नहीं करेगा। आई एम सेइंग हियर, जब तक P4 प्रोसेस को ए रिसोर्स नहीं मिलेगा तब तक जो मैंने बाकी भी दिए जो मेरे पास अवेलेबल थे वो भी एलोकेट हो गए हैं, वो भी मेरे को तब वापस मिलेंगे जब ए को जब P4 प्रोसेस को ए टाइप का रिसोर्स मिलेगा, और आपका सिस्टम क्या चला जाएगा डेडलॉक में। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना, बट हम क्या कर रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, तो हम P4 को भी रिसोर्सेज नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भले वो बी और सी की रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहा है, लेकिन वो ए के लिए तो वेट करेगा, तो अगर मैंने अगर इसमें से 3 और इसमें से 1 दे दिया, तो मेरे पास जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो और कम हो जाएगी और मैं बाकियों को भी नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले देखती हूँ मैं किसको एलोकेट कर पा रही थी, विच ऑफ द प्रोसेस आई कैन एलोकेट P1 एंड P1 को मैं एलोकेट कर पा रही हूँ और P3 को मैं एलोकेट कर पा रही हूँ। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है कि मैं किसको पहले एलोकेट करूंगी। देखो, दोनों में से आप किसी भी रिसोर्स किसी को भी पहले एलोकेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर पा रहे हैं। मेरे पास इतने नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं कि मैं P1 को भी दे पाऊँ और P3 को भी दे पाऊँ। तो मैं इन दोनों में से, मैंने क्या बोला, मैं एक सीक्वेंस को ही फॉलो करती हूँ। दिस इज द आइडियल सिचुएशन आई विल यूज। तो मैं एक सीक्वेंस में मैं पहले P1 को एलोकेट कर देती हूँ। तो मैंने करंट अवेलेबल में से 1 to 2 P1 को एलोकेट कर दिए, तो मेरे पास अब कितने अवेलेबल हुए, मैंने 1 दिया इसमें से तो मेरे को 2 बचे, इसमें से 2 दिए तो मेरे पास 1 रिमेनिंग है, तो दिस इज द रिमेनिंग 1, राइट। मेरे पास इसमें से 1 रिमेनिंग है और इसको पूरे के पूरे चाहिए, तो दिस इज द रिमेनिंग रिसोर्सेज आई एम हैविंग इन द सिस्टम। तो जब मैंने इसकी करंट नीड पूरी कर दी, जितनी इसको रिक्वायरमेंट थी इसने यूज कर लिया, तो P1 प्रोसेस जब जाएगा, P1 प्रोसेस ने सारा काम किया, वो जब जाएगा तो वो कितने ये जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं वो भी रिलीज करके जाएगा ना, जो मैंने उसको ऑलरेडी एलोकेट किए हुए हैं। तो मेरे पास जो रिसोर्सेज बचेंगे, नाउ द न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज विल बी 200, that is 410. Now this is the available resources. Are you getting how I does that? The new available resources are now, so which one, which are allocated to P1 plus जो मैंने उसे allocation किया, जो मैंने उसको रिक्वायरमेंट थी मैंने उसकी फुलफिल कर दी। ठीक है, अब जैसे ही मैंने उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल की, उसको जो रिसोर्सेज चाहिए थे उसने उसे यूज किया, तो P1 सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा और जितने एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं वो सब रिलीज करेगा ना, जितने एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं। यस, what I was done here is, if I will allocate, अगर मैं यहाँ पर
मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं P1 प्रोसेस को 1 to 2 की करंट नीड थी कि उसको 1 2 एंड 2 इतने नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए। मेरे पास अवेलेबल कितने हैं, 3 3 एंड 2। तो मैंने उसको 1 दिया, तो यहाँ पर मेरे पास रिमेनिंग कितना बचा, 2। इसमें से 2 रिसोर्सेज दिए तो रिमेनिंग कितने बचे, 1। ये पूरे के पूरे दिए तो इसमें से कितने बचे, 0। दिस इज द रिमेनिंग रिसोर्सेज, राइट। तो जब मैंने P1 को जो रिक्वायरमेंट थी उसकी, जब मैंने उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी, तो P1 जो आपका प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऐप प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हुआ है वो कौन सा हुआ है, P1। P1 प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होगा तो जो रिसोर्सेज उसको एलोकेटेड हैं पहले से, ठीक है, ये तो मैंने उसको दिए ना, लेकिन जो उसको एलोकेटेड थे वो रिलीज करके जाएगा। तो मेरे पास जो रिमेनिंग है और जो उसने रिलीज किए हैं, अब मेरे पास वो सारे रिसोर्सेज होंगे। बट आई विल हैव, जो मेरे पास, जो मैंने उसे रिलीज किए, एक मिनट ना, देखिए हाँ, व्हाट वी वर डूइंग, basically we have allocated the resources to the P1 process, that is the requirement 1 2 and 2। तो जो मेरे पास अवेलेबल थे उसमें से रिमेनिंग कितने बचे मेरे पास, 210, राइट। तो मैंने जितने भी रिसोर्सेज उससे एलोकेट किए थे, मतलब जो मैक्सिमम रिसोर्सेज उसको रिक्वायर्ड थे, मैंने वो उसे एलोकेट किए, राइट। तो जो उसको मैंने मैक्सिमम रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए थे, वो जब जाएगा तो जो उसे एलोकेटेड है वो सारे के सारे रिसोर्सेज रिलीज करके जाएगा। तो इट विल रिलीज 200 एंड 122 बोथ। कि मैंने इसे ये भी तो अभी अभी दिए है ना। तो यहाँ पर जो आपका नया अवेलेबिलिटी होगा, दैट वुड बी, दैट इज 210 plus 3 2 2, that is 2 3 and 5।
That is the new availability of the system is, it is 5, 3 and 2. Guys, give me 2 minutes. Huh? Am I audible to everyone? So guys, what I was saying is, we are allocated the resources to P1 process, that is the requirement, that is 1 to 2. अगर आप इस तरीके से देखो, अगर मैंने उसको 1 to 2 को रिक्वायर जितने भी मेरे पास अवेलेबल थे उसमें से अगर मैंने उसे 1 to 2 रिक्वायरमेंट थी जो उसे दे दी, तो मेरे पास रिमेनिंग है 210, राइट। लेकिन जब वो जाएगा तब अपने सारे के सारे रिसोर्सेज कौन से थे उसके 322, तो अगर अगर मैं इसको नहीं कंसीडर करूँ, तो व्हाट आई कैन आल्सो डू हियर इज टू मेक द थिंग्स मोर easy, make the things more easier here, what I will do here is I will add to the available number of resources to the allocated resources I am having to the process P1, that is 200. Now the it is 5, 3 and 2. So it will give the same number. देखो मेरे पास available resources कितने थे, 3, 3 and 2. P1 की requirement कितनी है, 1, 2 और 2. मैंने अगर इसको इसकी रिक्वायरमेंट को अगर मैंने फुलफिल कर दिया तो मेरे पास कितने बचेंगे यहाँ पर, 2, 1 और 0, राइट। तो मतलब मैंने अगर इस वाले को 2, 1 और 0 दे दिया तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने हो गए, जो उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो उसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट में से मैंने अगर इसको इतने और दिए जो मतलब एलोकेटेड थे और जो इसको और चाहिए थे 1 to 2, तो मैंने इसको सॉरी 210 नहीं, मैंने इसको 1 to 2 और दे दिए, तो इसकी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई। तो जो इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है, तो जब भी सिस्टम से जाएगा तो जितने भी रिसोर्सेज उसके पास थे वो सारे रिलीज करके जाएगा ना। तो उसके पास कितने रिसोर्सेज एक्चुअली थे, 3 टाइप ऑफ ए, 2 टाइप ऑफ बी एंड सी टाइप के भी 2 रिसोर्सेज। तो मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो कितने थे, 332। उसमें अगर ये एलोकेटेड ऐड करूँ तो भी मेरे पास वो सेम नंबर मिलता है। और लेकिन अगर मैं इसमें से जो मैं मेरे पास रिमेनिंग थे, रिमेनिंग में अगर मैं इसका एलोकेटेड वाला जो मैक्सिमम है अगर मैं इसमें ये ऐड करूँ तो भी मुझे सेम नंबर मिलता है, दैट इज 532। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर कि आप इतना कंफ्यूज होने की बजाय आप एक ही चीज को फॉलो करो यहाँ पर, दैट इज कि मेरे पास जो सिस्टम है, सिस्टम में मेरे पास P1 प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 1, 2 और 2। मेरे पास करेंटली अवेलेबल कितने हैं रिसोर्सेज, 3, 3 और 2। तो क्या मैं इसको दे सकती हूँ,
मैं इस प्रोसेस को असाइन कर देती हूँ जितने भी रिसोर्सेज इसको चाहिए, तो मैंने इस प्रोसेस को रिसोर्सेज असाइन कर दिए। तो जब P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो वो अपने एलोकेटेड रिसोर्सेज को रिलीज करके जाएगा। तो आप अवेलेबल में एलोकेटेड जब ऐड करोगे, नाउ द न्यू अवेलेबल इज 5, 3 and 2. You will use the allocated one and add into this, it is 200। तो मेरे पास नए अवेलेबल रिसोर्सेज कितने होंगे? 5, 3, 2। ये पॉइंट क्लियर है सबको? This is what I just want to clear out here by using two of the concept, कि मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है अब वो बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि जब P1 प्रोसेस को मैंने रिसोर्सेज एलोकेट किए और जब वो जाएगा सिस्टम से तो अपने ऑलरेडी रिसोर्सेज जो उसको एलोकेटेड थे उसे रिलीज करके जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास अवेलेबल कितने थे? 332। उसमें से मैंने उसको कुछ दिए, उसने उसे यूज किया और जो उसके पास एलोकेटेड रिसोर्सेज थे उसे रिलीज करके गया। तो मेरे पास जो अवेलेबल थे और जो उसको एलोकेट किए मैंने, अब आपके पास ये क्वेश्चन उठना जायज है कि मैम अवेलेबल में भी से तो भी हमने इसको 1 to 2 दिए ना, लेकिन अगर उसको आपने ये सारे रिसोर्सेज दिए तो वो अपने मैक्सिमम वाले को भी रिलीज करके जा रहा है ना। तो अगर आप यहाँ पर 210 में भी 322 ऐड करोगे तो भी आपको 532 ही मिलेगा। क्लियर है सबको? ये कोई कंफ्यूजन हो रहा है इसमें किसी को? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? आगे आगे करते हैं, नेक्स्ट स्टेप करते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आता जाएगा। द थिंग्स विल बिकम मोर इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए, अब मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं? दैट इज 532। अब मेरी जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, अब देखो मैं अब कौन से, फिर से मैं चेक करती हूँ कि मैं कौन कौन से प्रोसेसेस को दे सकती हूँ रिसोर्सेज। तो इसकी नीड क्या मैं फुलफिल कर सकती हूँ? आई एम हैविंग 5, 3 and 2। क्या मैं सारे प्रोसेसेस की नीड पूरी कर सकती हूँ इसमें? प्रोसेस P1 P0 के A B C की नहीं कर सकती। क्या मैं इसकी नीड पूरी कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। अब मेरे पास P3 और P4 दो रिसोर्सेज हैं जिनकी नीड मैं पूरी दो प्रोसेसेस है जिनकी नीड मैं पूरी कर सकती हूँ। तो अगेन गोइंग विद द सीक्वेंस, आई विल गो विद P3। तो मैं P3 को प्रोसेसेस P3 प्रोसेस को जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको रिसोर्स दे दूंगी। तो जब आपका P3 प्रोसेस सिस्टम से एग्जीक्यूट होकर जाएगा तो जो उसको एलोकेटेड थे वो रिलीज करके जाएगा। नाउ द न्यू एलोकेशन इज 2 plus 5, that is 532 plus 211, that is 7, 4 and 3। The new availability is 7, 4 and 3। ठीक है, अब मेरे पास 7, 4 और 3 अवेलेबल है। तो देखो करंट नीड किसकी, P0 की नीड भी फुलफिल कर सकती हूँ, P2 की भी और P4 की भी। तो P1 के बाद कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है? P3। अब क्या मैं ए को दे सकती हूँ? बिल्कुल मैं फर्स्ट वाले को भी दे सकती हूँ कि मेरे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जितने P0 को चाहिए। तो मैंने P0 को सारे रिसोर्सेज दे दिए, P0 को सारे रिसोर्सेज दे दिए। तो P0 जब जाएगा तो ये वाले रिसोर्सेज भी रिलीज करके जाएगा। नाउ द आई एम हैविंग द अवेलेबल रिसोर्सेज इज 0, 1, 0, दैट इज 3, 5 और 7। तो मेरे पास 7, 5 और 3 जो है वो अवेलेबल है जब P0 एग्जीक्यूट हो जाता है। तो नेक्स्ट सीक्वेंस विल बी P0, राइट? तो P0 को भी मैंने एलोकेट कर दिया। अब मेरे पास कितने अवेलेबल हैं? दैट इज 7, 5 and 3। तो मैं इन दोनों में से किसी को भी दे सकती हूँ, तो मैं पहले ही से दे देती हूँ। तो मैंने जब इसको एलोकेट किया तो जो इसके पास भी रिसोर्सेज थे वो भी क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो जो मेरे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज थे दैट इज 3, 0 और 2। तो यहाँ पर कितने हुए? 5, 5 और 10। एक्चुअली मेरे पास होने कितने चाहिए? 10, 5 और 7 ना। मेरे पास अब कितने बचे हैं? 10, 5 और 5। तो मैंने किसको एग्जीक्यूट किया है यहाँ पर? P2 प्रोसेस को। तो P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर किया मैंने यहाँ पर। चलिए मान, उसके बाद मेरे पास किसकी कौन बचता है? P4 प्रोसेस। तो P4 जब जाएगा तो एक ही टाइप का रिसोर्स है जो रिलीज करके जाएगा। तो लास्ट वन इज 10, 5, 5 plus 0, 0, 2। Now the resources I am having is 10, 5 and 7। It is the total number of resources in the system। समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? Have you got this point what I have done?
एवरीबॉडी, देखो सिंपल सी बात है, आप पहले क्या देखोगे कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं, फिर आप उस हर एक प्रोसेस की करंट रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करोगे। जैसे ही करंट रिक्वायरमेंट, करंट नीड हर एक प्रोसेस की आपको पता चल जाती है, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी यू कैन असाइन द रिसोर्सेज। देन आफ्टर फाइंडिंग दैट अवेलेबिलिटी, जैसे ही आपने किसी, अब नाउ दिस इज द सेफ सीक्वेंस, P0 के बाद मैंने P2 और इसके बाद P4, the safe sequence is P1, P3, P0, P2 and P4 and your system is into the safe state, क्योंकि मैंने जितने नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज थे उतने में मैंने क्या किया है, अपने प्रोसेसेस को, सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया है, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट। तो फटाफट से आप ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ गया है। डू इट फास्ट। This is the allocated allocation given and this is the request. Means this is the need. Question क्या है? A single processor system has three resources X, Y and Z which are shared by three of the processes P0, P1 and P2. There are 5 units of each resource type. Means we are having total number of resources 5, 5 and 5. Consider the following scenario where the column allocation denotes the number of units each resource type allocated and the column request denotes the number of units of each resource type requested by a process in order to complete its execution. तो आपकी request क्या है, मतलब this is the maximum, this is the actual need, the current need of the process. आपको मैक्सिमम एलोकेशन नहीं दिया है, आपको सिर्फ करंट नीड दिया है, ठीक है। Which one of the process will finish last? It means you have to firstly find out the safe sequence in the system. Find out करो जल्दी से। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, हम इस क्वेश्चन को कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Have you note down this question? Okay. You will try this question and we will discuss this question in next class. Next class में हम इस एल्गोरिथम पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम इसका जो प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट सेशन में करते हैं। So we are closing this session here with this.